Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 8 and today's our topic is changes in the indigenous systems. Means native, there are some changes in native systems and also growth of national education. In this, the Swadeshi and the boycott movement both shook the very foundation of the British Empire in India. So let us start read about this. Okay, so. Before the advent of the English, both the Hindus and the Muslims had their own educational institutions like maktabs, madrasas, pathshalas, mosques and temple schools. Means before the coming of English in India, both the Hindus and Muslims, they have their different types of education system. Okay, and there were some of like maktabs, madrasa, pathshalas, mosques and temple schools. According to William Adam, a um, Scottish missionary who was asked by the company to report on the education in vernacular schools. And also according to one of the Scottish uh, missionary William Adam who was asked by the government, किसके द्वारा पूछा गया था, company to report on the education in vernacular schools, means native language, means expressed or written in the native language of the place. Adam found that in the 1830 there were 1 lakh पाठशालाज in बिहार. उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी तो उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट देना शुरू किया. In 1830 there were 1 lakh पाठशालाज in Bihar and Bengal alone, catering to the needs of about 20 lakh students. और ये जो ये पाठशालाज थे, 1 लाख पाठशालाज, ये कितने लोगों को की ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, 20 lakh students. Mostly these institutions were set up by wealthy people and sometimes by the guru themselves. Or mostly when we see that most of the institutions were established by or run by the wealthy persons or sometime guru or teacher. ये कभी कभी ऐसा था कि मोस्टली जो ये स्कूल्स थे, पाठशालास थे, ये कुछ धनी लोगों के द्वारा चलाए जाते थे या तो कभी गुरु या शिक्षक के द्वारा. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings. और ना ही आज की तरह सेपरेट बुक्स होती थी सब्जेक्ट वाइज, ना ही क्लासरूम्स हुआ करती थी, ना ही फैन होता था और ना ही सेपरेट स्टूडेंट्स के बैठने की जगह होती थी. In some places the classes were held in a temple or mosques, sometimes under a banyan tree and sometimes at the guru's house. और कभी कभी क्या होता था कि भी टेम्पल में क्लासेस चल गई, कभी मॉस्क्यूज में क्लासेस चल गई और कभी या तो गुरु के घर में ही चली गई, कभी कभी पीपल के नीचे ही बैठ कर के क्लासेस हो गई. तो इस तरह से क्लासेस चला करती थी. These depended on the income of the parents. और ये मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होता था, जो पेरेंट्स की इनकम थी. The students sat together in one place and they were not separated into class. सब बच्चे एक साथ बैठते थे, उनका कोई क्लास सेपरेशन नहीं था. The guru interacted separately with groups of children with different level of learning. और गुरु क्या करते थे, बच्चों को उनकी इंटरेक्शन और या तो कह सकते हैं उनके लेवल के हिसाब से स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया करते थे. This system of education was quite flexible and catered to the local need.
और ये बड़ा ही लचीला था, प्लस हर एक लोगों तक पहुंच सकता था और टू द जो लोकल लोगों की नीड्स को पूरी करता था। बट द एडवांस ऑफ द इंग्लिश एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर रूल इन इंडिया फोर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश देयर ओन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बट ऐसा नहीं होने पाया। जैसे ही इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने अपना अलग सा सिस्टम एजुकेशन का की स्थापना करनी शुरू कर दी। अल्टीमेटली अ डिसीजन वाज टेकन इन 1835 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक to promote the teachings of western education through the medium of English alone। उसके बाद से 1835 में यह लास्ट में तय किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक कि इस टीचिंग का मीडियम माध्यम इंग्लिश रखा जाए और हम लोग यहाँ पर टीचिंग स्टार्ट करें। As a result of such a policy, the traditional system of education gradually withered away for lack of official support, and the announcement of the government in 1844 that applicants for government jobs should possess knowledge of the English and the literature। और क्या था, जो हमारी जो इस तरह से इनकी पॉलिसी की वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम से धीरे धीरे उनका स्तर नीचे गिरता गया और इनको ऑफिशियल सपोर्ट हमको कहीं भी नहीं मिला। ठीक, और जब अनाउंसमेंट हुआ इसके लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि वही लोग एप्लीकेबल होंगे जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे या इंग्लिश आती होगी, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ऑलरेडी विद द लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड एलिमिनेशन ऑफ द इंडियन रूलर, वो ऑलरेडी इंडियन रूलर्स अपनी पावर सारी चीज़ों को खो चुके थे। रूलर द रॉयल पैट्रोनेज गिवन टू इंडिजीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैड वैनिश्ड फॉर एवर, और सारी चीज़ें बिल्कुल ही टोटली ख़त्म हो गई थी। स्लोली द इंडियन स्टूडेंट्स वेयर ड्रॉन टूवर्ड्स इंग्लिश कॉलेजेस एंड स्कूल्स, और धीरे धीरे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे किसकी तरफ अपना रुझाव करने लगे, इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ। नाउ ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन, द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और देखा जाए तो जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के द्वारा इन ब्रिटिशर्स के नींव को हिला करके रख दिया। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द स्टूडेंट्स टूक अ मेजर पार्ट, और इस समय काल में स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाए, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। क्या था, which drew upon them the words of the British government, which drew upon the words of British government. Many students were expelled from their schools and colleges, और इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को स्कूल्स और कॉलेजेस से एक्सपेल्ड कर दिया गया। Circular after circular was issued to different schools and colleges to take severe disciplinary action against such students who were found taking part in the Swadeshi and boycott movement। और फिर एक नोटिस पर नोटिस जारी होने लगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में पार्ट लेते हुए पाया गया तो उसको स्कूल से कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और वो उसको बहुत ही सख्त उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स वेर फाइंड एंड एक्सपेल्ड बट मेनी टीचर्स वेर ऑल्सो फोर्स्ड टू रिजाइन व्हेन दे रिफ्यूज टू फाइन एंड व्हिप द स्टूडेंट्स। और यही नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर ही नहीं बल्कि टीचर्स के ऊपर भी क्या हुआ, उनको भी फोर्स डाला गया रिज़ाइन करने के लिए। और क्यों,
जब उन्होंने फाइन लेने से और बच्चों को कोड़े से मारने से इनकार कर दिया। Such actions on the part of the authorities forced the students to boycott the Calcutta University। इस तरह से कलकत्ता यूनिवर्सिटी का विरोध किया गया। At such a critical juncture, many eminent persons of Bengal got together and held a conference on 10th November 1905। इन सब स्थिति को देखते हुए वहाँ के जो कांग्रेस जो बिहार बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स ने मीटिंग रखी, सब लोग एक साथ हुए और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 10th नवंबर 1905 को। In this conference they decided to establish a National Council of Education in order to organize a system of education on national lines and in national hands। इसमें यह डिसीजन लिया गया कि एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम वे में इस्टेब्लिश किया जाए, प्लस वो भी किस लेवल पर, नेशनल लाइंस एंड ऑन नेशनल हैंड्स। विद इन नो टाइम a huge amount was collected and the National Council of Education was set up in a large house with a compound donated by a nationalist donor। और कुछ ही समय में बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो सेट अप इन लार्ज हाउस and also a compound donated by nationalist donor। Within no time many national schools and colleges were founded। और कुछ ही समय में कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के भी को भी इस्टेब्लिश किया गया। According to an estimate in 1908 the number of secondary schools grew to 25 and primary school national schools to 300। अभी कुछ ही दिनों में देखा जाए 1908 में लगभग 25 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 300 primary school। The expelled students and teachers who were forced to resign were absorbed and adjusted in these national school। और जिन बच्चों को हटा दिया गया था, जिन टीचर्स को हटा दिया गया था, उन सबको इन सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एडजस्ट किया गया। In its session of 1906 the Bengal Provincial Conference endorsed means declared the idea of establishing national schools throughout the country। अब उसके बाद से तय किया गया 1906 में कि पूरे इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, स्कूल्स को इस्टेब्लिश करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 also approved the resolution of opening national institutions throughout the country। इन्होंने भी जो नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने भी मंजूरी दे दी कि हाँ पूरे कंट्री में स्कूल ओपन किए जाएंगे। द इन मूविंग द रिवोल्यूशन हृदयनाथ दत्ता सेड स्वदेशिम इज अ 3-faced गॉड। स्वदेश के कितने फेस हैं, 3-faced गॉड्स हैं। जैसे द one face to accept of the goddess is political, the second face is industrial, the last but the not the least is educational। मतलब पहला उनका क्या लक्ष्य है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फिर दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एजुकेशनल। Thus, in 1905, with the Swadeshi and the boycott movement, the national education also became a part and parcel of the national movement। इस तरह से देखा जाए तो 1905 में जो स्वदेशी और boycott movement और जो the national education also become a part and parcel of national movement। यह भी एक national movement का हिस्सा बन गया। So today only this much. Tomorrow we will start Mahatma Gandhi's
व्यूज ऑन एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी का बर्थडे भी आ रहा है, तो मे बी आई थिंक उसी दिन हम लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। नो नो 2 अक्टूबर, ओके ओके, इट्स डजंट मैटर, ओके। So here's your homework data. Learn exercise B of chapter 7. Okay, thank you.